Yes, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, good evening. Now, before we start, by the time more students join in, Pranav Joshi, rename your Zoom profile. Ajay Puri, rename your Zoom profile. We have posted on the WhatsApp group itself that how we are expecting that you should be writing your name and roll number in your Zoom profile that we have posted. Ajay Puri, rename your profile. If you are unable to do it, just ask me. I am there to help you out. Rohan Nalaude, Pranav Joshi, Ajay Puri, rename your profile. Saurabh Maske. You have to write 2020-22- your roll number and your name. Yes, Finny George, rename your profile. (2020). Yes, Saurabh has done very good. Finny George, rename your profile. It should be 2020-22. Just 1 second, I'm just doing it. Yes, yes. Ajay Puri. Rohan Nalaude, rename your profile. So just one small question. Yes, by the time these students are renaming their profile, if anyone is having any query, you can ask your query. Yes. Yes, sir, Dipali here. Yes, Dipali. So just one small question. The Yes. online schedule which you have sent, उसमें ऐसे कुछ ये हुआ है कि 7 और 8 का switch, because it says basics of marketing and legal aspects of business at 8 p.m. Yes. It is an internal adjustment. Madam was having some official work. Okay. So I am adjusting Madam's lecture. She will be adjusting my lecture. Okay, no problem. Yes, Rohan and Ajay, you are still to rename your profile. Ajay, unmute yourself. Ajay Puri. Ajay Puri. Unmute. अगर आपको नहीं पता है तो पूछ सकते हैं आप. आदेश दुधाने, rename your profile. It should be Pratiksha. You have not renamed it correctly. It should be 2022. Not, it should be 2020-22, not 21. Pratiksha. Check and rename it again. It should not be 2021. It should be 2020. Yes, now Rohan has done it. Finny George has done it. Only Ajay Puri is still. Ajay Puri, am I audible? अच्छा, सिर्फ लॉगिन करके छोड़ दिया, ऐसा है क्या अजय? ठीक, no problem. So we will start with our session. So we were discussing during our last session discharge of contract. So discharge of contract is very simple. When the contract comes to an end, it is called as discharge of contract. End of contract. Contract का खत्म हो जाना मतलब discharge of contract. There are various ways of discharge of a contract that we were discussing during our last lecture. I hope that my voice is clear. Yes, Is sir. it audible? Yes, sir. Yes, And yes. the screen is also, you can see my screen also. Yes. Okay. Yes. So we will be starting with discharge of contract.
first few points we have already covered, that what is by performance, discharge by performance of contract, and what is by agreement. Under agreement we had discussed, I think, six points we had discussed, and seventh was remaining. Anybody who wants to start the discussion on seventh type or way of discharge of contract? जो सेवेंथ पॉइंट है, वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बाय ओइंग टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट. जब कोई ऐसी घटना घटित हो कि उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है. एनीवन, you can unmute yourself and you can start with the discussion. You can share examples also if you have. Yes, चलिए, तो आप लोग अनम्यूट करके शुरू कर सकते हैं. Yes, anyone? Okay. By owing to the occurrence of an event means, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कभी-कभी ऐसी घटना हो जाती है कि उस घटना की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. तो दैट कॉन्ट्रैक्ट which discharges because of occurring of a event, that is called as discharge of contract by owing to an occurrence of an event. अब ऐसी घटना क्या हो सकती है? सपोज अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, या फिर आग लग गई. ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिस घटना की वजह से अगर सब्जेक्ट मैटर या फिर किसी पार्टी को प्रॉब्लम होती है उसे परफॉर्म करने में, देन इट इज सेड टू बी डिस्चार्ज owing to the occurrence of an event. For example, अभी yes, anyone? सर नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते क्या? एनी अदर प्रॉब्लम नहीं हो सकते कुछ? हाँ, कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? बोलिए. हो सकता है ना, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है और दूसरे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो ऐसी घटना, जिस घटना के घटने की वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टियों के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज हम कैसे मानेंगे? कि इट हैज डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ एन इवेंट, बिकॉज ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. अब मिस्टर ए को अपना घर बेचना है और मिस्टर बी को वो घर खरीदना है. दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. अब अगर जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में परफॉर्म होने वाला है, उस दिन से अगर पहले जो घर है उसमें आग लग जाती है और वो घर नष्ट हो जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? It is discharge of contract by happening of an certain event, occurrence of an event. आग लग गई मतलब एक ऐसी घटना हुई जिसमें सब्जेक्ट मैटर क्या था? घर. तो घर ही खत्म हो गया, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया. वो कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं किया जा सकता. सो वैसे ही अगर अर्थक्वेक में घर खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो था कि घर खरीदना है, घर बेचना है, सब कुछ क्लियर था, पर खरीदने से पहले या बेचने से पहले जिस दिन प्रॉमिस हुआ था कि 7 दिन के बाद हम लोग पैसा एक्सचेंज करेंगे या घर के डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिस दिन रजिस्ट्रेशन होने वाला था उससे 2 दिन पहले अगर वो घर अर्थक्वेक में नष्ट हो गया, तो इट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सर तो नेचुरल कैलेमिटी के साथ साथ दूसरे भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. हाँ, कोई और अभी? यस. जब दूसरा पर्सन है जो घर परचेस करना चाहता है, हाँ, तो ए पर्सन की जो घर की अमाउंट है, तो हाँ. दूसरे पर्सन को वो नहीं, मतलब वो उसे परवड़े. हाँ, हाँ, बोलो. यू कैन यूज मराठी, इंग्लिश, हिंदी, एनीथिंग. जर ती दुसऱ्या व्यक्तीला जर परवडत नसेल, हाँ, तर म्हणजे डिस्चार्ज करू शकतो का? डिस्चार्ज होऊ शकतं का ते कॉन्ट्रॅक्ट?
की फक्त नॅचरल प्रॉब्लेमच होऊ शकतात? नहीं. It is not only natural. It is other than natural disaster also. Now, but what you are saying is not a correct example. Now, when we say offer and acceptance, we assume that offer was accepted as it is. अब जैसे अभी आपने बोला कि उसकी उस समय वो हालत नहीं थी खरीदने की, अगर उसकी हालत नहीं थी तो उसने एक्सेप्टेंस क्यों दिया? उसे पता है कि ए का जो घर है, अगर बी को खरीदना है, ए ने ऑफर बी को दिया 10 लाख में मैं अपना फ्लैट बेचना चाहता हूं। बी कब एक्सेप्ट करेगा? जब उसकी कंडीशन होगी वो फ्लैट खरीदने की, मतलब उसे पता है कि उसके बैंक में 10 लाख से ज्यादा रुपए हैं और वो खरीद सकता है, तभी वो एक्सेप्टेंस देगा। अब अगर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होना है उस दिन अगर बी कैंसल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो इट विल नॉट बी सेड टू बी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अकरेंस ऑफ एन इवेंट। यहां पर मिस्टर ए को हमेशा एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो मिस्टर बी को कोर्ट में लेके जा सकता है और उनसे कॉम्पेंसेशन वसूल कर सकता है। फॉर व्हाट? फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपने कमिट किया था, आपने लिख के दिया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो आपने ऑनर नहीं किया है, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी वैलिड रीजन के तोड़ दिया है। ऐसे में मिस्टर ए को कोर्ट कॉम्पेंसेट करेगा। सो दिस एग्जाम्पल, yes, we can say it is one way of discharge of contract. डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट, पर यहां पर किसे कॉम्पनसेशन मिलेगा? मिस्टर ए को 100% कॉम्पनसेशन मिलेगा। पर जब वी आर सेइंग दैट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ एन इवेंट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ एनी वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब घर में आग लग गई, घर जल गया, घर खत्म हो गया, ये किसी के हाथ में नहीं था, नेचुरल डिजास्टर, और मैनमेड डिजास्टर भी बोल सकते हैं। ये मैनमेड डिजास्टर था, पर वो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ। अगर ये सब प्रूव हो गया तो नो वन इज एट फॉल्ट, नोबडी इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट द अदर पार्टी। अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल कैलेमिटी। फ्लड आया, फ्लड में वो घर बह गया, इट इज अ नेचुरल कैलेमिटी। अब जैसे आपने पूछा कि सिर्फ नेचुरल कैलेमिटी ही अकरेंस ऑफ एन इवेंट है क्या, या कुछ और भी हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स कुछ और भी हो सकता है, पर वो कुछ इवेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ये लगे कि किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं था, पर इस इवेंट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। अब मिस्टर ए, आई अंडरस्टैंड। हाँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं। अभी जैसे मिस्टर ए और मिस्टर बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 10 दिन के बाद मिस्टर ए अपनी कार मिस्टर बी को बेचेंगे और मिस्टर बी बदले में 5 लाख रुपए उनको देंगे। अब 10 दिन से पहले अगर मिस्टर ए की डेथ हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पर डिस्चार्ज हो सकता है बिकॉज ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। क्या इवेंट, घटना घटी यहां पर कि जो मिस्टर ए थे उनकी ही मृत्यु हुई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज बाय ओइंग टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। नाउ नेक्स्ट वन, अगर किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो माय रिक्वेस्ट विल बी that you can unmute yourself, you can stop me anytime. You have every right to stop me anytime and ask your query, right? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आप बोल रहे थे, आपको इंटरप्ट करना ठीक नहीं लगा, पर मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? राइट, नाउ नेक्स्ट इज लैप्स ऑफ टाइम। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड under time barred debt, that what is lapse of time. Lapse of time in contract essentials of valid contract also, when we were discussing
the essentials of a valid offer and essentials of a valid acceptance, that time also we had discussed what is lapse of time, discharge of contract by way of lapse of time. तो जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए, अब सपोज मिस्टर ए को कार बेचनी है, मिस्टर बी को कार खरीदनी, कॉन्ट्रैक्ट की तारीख है 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को अगर मिस्टर ए एग्रीड प्लेस पे एग्रीड टाइम पर अपनी कार लेकर नहीं आते हैं डिलीवरी देने के लिए, और मिस्टर बी पैसा लेके एग्रीड डेट पे एग्रीड टाइम पर एग्रीड प्लेस पर अगर नहीं आते हैं 1 फरवरी, then this contract will be called as discharge of contract by lapse of time. Lapse of time मतलब जो समय निर्धारित हुआ था उस समय पर अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाता तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। उसका कौन सा तरीका माना जाएगा? बाय लैप्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नाउ अंडर ऑपरेशन ऑफ लॉ देयर आर 4 points which are covered as far as discharge of contract is concerned. First one is death, second is insolvency, then merger and complete loss of evidence. Now death. अब डेथ में हम लोग बोल सकते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है? अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया है 1 लाख रुपीस, 3 महीने के लिए लोन दिया गया 10% इंटरेस्ट पर मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने वो लोन लिया, प्रॉमिस किया कि 3 महीने के बाद आई विल रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपीस प्लस 10% ऑफ इंटरेस्ट per month. That was the contract between Mr. A and Mr. B. Now, before the completion of contract, before Mr. B could return the amount and the interest to Mr. A, Mr. B died in an accident. 2.5 महीने के बाद या 3 महीने से पहले, जब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था उससे पहले एक रोड एक्सीडेंट में मिस्टर बी की डेथ हो जाती, तो क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का? कैन बी से दैट दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ डेथ, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी? ऐसा है क्या? यस, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द रीजन. What will be the position of this contract? Can we say that because of death of Mr. B, there is discharge of contract by operation of law? कि मिस्टर बी ने पैसे लिए थे, मिस्टर बी की डेथ हो गई है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया क्योंकि मिस्टर बी की ही डेथ हो गई। तो हो जाएगा क्या ये डिस्चार्ज बाय वे ऑफ डेथ? फैमिलिया है ना कोई तो हो सकता है, हो सकता है, ओके हो सकता है, ओके, हो सकता हो है, सकता है। क्योंकि हाँ। नॉमिनेशन रहता है तो फिर हाँ, मतलब अगर जो एग्रीमेंट रहेगा उनके बीच, तो हाँ, उसका भी कुछ हो सकता है ना? तो हम लोग ये बोलेंगे अभी, आई विल कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, व्हेन द लोन वाज गिवन टू मिस्टर बी, there were 2 witnesses. One of the witness was Mr. B's wife, and the second guarantor or witness who has signed on this contract was his elder son. तो बेटा और पत्नी दोनों भी यहां पर इन्वॉल्व हैं, पर मिस्टर बी ने पैसा लिया, मिस्टर बी ने पैसा यूज किया, मिस्टर बी ही पैसा चुकाने वाले थे, पर मिस्टर बी की डेथ हो गई। अब ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा या आगे चलेगा? सर आई थिंक मदर आगे चलेगा, आगे चलेगा, हाँ, कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, Yes. कोई ऐसा कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट अब डिस्चार्ज हो जाएगा? एनीवन? अगर सामने वाला कैपेबल नहीं रहेगा तो वो कैरी हाँ। फॉरवर्ड नहीं हो सकता, सो ये डिस्चार्ज ही होगा। अच्छा, ओके, एनीवन एल्स?
yes, anybody Yes, sir, it will like get हाँ, discharged. it will get discharged. Discharged because the हाँ, because the because main the person between हाँ, between whom the contract has occurred, हाँ, he is absent. okay, now he is no more, so contract will be discharged, right? Yes. Right. Okay. Now, here we have to take into consideration, or you can recall when we were discussing performance of contract, that there are certain contracts which are to be performed by only promiser. Right. वहां पर हमने जो 4-5 टाइप्स देखे कि कौन परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट. कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रहते हैं कि जहां पर जो प्रॉमिसर है, मतलब जिसने प्रॉमिस किया है, वो ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं. अब इस एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट कौन से टाइप का है? क्या यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या कि सिर्फ वो ही परफॉर्म कर सकता है, दूसरा नहीं? अगर उसे टाइम नहीं है तो उसकी वाइफ पैसे पे कर सकती है, उसका बेटा पैसे पे कर सकता है. तो यहां पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि दिस इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओनली द केसेस वेयर द स्किल ऑफ अ पर्सन और नॉलेज ऑफ अ पर्सन और एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन आर इन्वॉल्व, only under those cases and only under those contracts, if the promiser has died, then it is discharge of contract. Now, one of the students said that if wife is not in a financial position to return the money, right? Yes, anyone? I think somebody has unmuted his or her mic. So please mute your mic, or if you want to ask any query, you can ask, or else mute your mic. Okay. हाँ, तो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल आपकी कैपेसिटी नहीं है पत्नी की और बेटे की, तो ये डिस्चार्ज हो सकता है. तो ये डिस्चार्ज होगा, पर ये सेकंड पॉइंट के अंडर होगा, इंसॉल्वेंसी में, कि जब बैंक ने ये कोर्ट ने ये घोषित कर दिया कि इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है, तो ही ये डिस्चार्ज हो सकता है. अगर सपोज मिस्टर बी की डेथ हो गई, पर मिस्टर बी के पास फ्लैट है, तो मिस्टर ए कोर्ट में मिस्टर बी के जो लीगल हायर हैं, मतलब उसकी जो वाइफ है, वो उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं कि आपके हस्बैंड ने पैसा लिया था, आप उसमें विटनेस हैं, आपको ये सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, तो इस प्रॉपर्टी में से आपको वो 1 लाख रुपया और इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, एंड कोर्ट विल एग्री टू इट. ओनली अगर इसी एग्जाम्पल को हम लोग चेंज कर देते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए दिए अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए. तो मिस्टर बी कौन है? एक पेंटर है. अब पेंटर की अगर डेथ हो गई और पेंटर करोड़पति है, तो भी मिस्टर ए उसकी वाइफ से 1 लाख रुपए वसूल नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज हियर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज discharged by way of death, because under performance of contract we had discussed that any contract which makes it necessary that only the promiser in the contract is supposed to complete the responsibility mentioned in the contract. If that thing is there, then yes, death is discharge of contract. तो जब हम पैसा उधार, जैसे अभी बैंक में भी अगर लोन लिया जाता है, अब सपोज अगर मैं लोन लेता हूं, तो बैंक मुझे लोन देगा, पर कब देगा? जब मैं कुछ मॉर्गेज रखूंगा, या फिर अगर मेरे पास मॉर्गेज के लिए कुछ नहीं है, तो कम से कम 2 गारंटर मुझे देने पड़ेंगे, तभी मुझे वो लोन मिलेगा. अगर मेरी डेथ हो जाती है लोन चुकाने से पहले, so there will not be a discharge of contract, because it will not come under a contract which involved special knowledge of a person, skill of a person or ability of a person, right? तो जहां पर ये सब चीजें इन्वॉल्व नहीं है,
वहां पर या तो वो व्यक्ति परफॉर्म कर सकता है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जैसे हमने देखा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड पार्टी कैन परफॉर्म, हिज लीगल हायर कैन परफॉर्म, और एनी अदर पर्सन कैन परफॉर्म। तो पैसा देने का जब आता है तो ये जो लेन देन है ये कोई भी परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पर कोई स्पेशल स्किल, नॉलेज या एबिलिटी की जरूरत नहीं है, तो इट इज नॉट covered under discharge of contract, right? Insolvency, it is very simple. When a person is declared insolvent, bankrupt by the court, then there is discharge of contract. जैसे हम लोगों ने एनपीए का एग्जाम्पल लिया था, बहुत सारे लोग बैंक से पैसा लेते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, पर बिजनेस में लॉस हो जाता है और वो बैंक को पैसा रिटर्न नहीं कर पाते। अगर बैंक या कोई प्राइवेट मनी लेंडर जिससे भी पैसा लिया है वो कोर्ट में केस फाइल करता है और वो व्यक्ति कोर्ट में अगर ये प्रूव कर देता है कि नाउ ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, नाउ ही हैज बिकम बैंकरप्ट, then the court will say that the contract is discharged by way of insolvency. Now, discharge of contract by merger, we have already discussed that when a smaller contract is merged into a higher contract, then that smaller contract is discharged. Next one, complete loss of evidence. Evidence सबको पता है, proof, loss मतलब गुमना, गुम हो गया है या खत्म हो गया. So what it is said is complete loss of evidence. So complete loss of evidence मतलब जो भी proof था उस contract के अंदर वो अगर पूरी तरह से नष्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. अब कॉन्ट्रैक्ट में जैसे हमने देखा, स्टार्ट से हम लोग बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, ताकि दोनों को अपनी अपनी, दोनों पार्टीज को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो और दोनों पार्टीज को ये पता है कि इन केस ऑफ ब्रीच बाय any of the party in the contract, the other party is having an option to take the party which has broken its promise to the court of law and recover the damages or recover the compensation. पर कोर्ट भी कब एक्सेप्ट करता है किसी भी केस को? जब वो केस एविडेंस के साथ फाइल किया जाता है. अब अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया गया, अब ओरल कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, इट इज लीगल, राइट? बट वो कब लीगल होगा? जब कोर्ट में आप प्रूव कर सकते हैं कि ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में हुआ, उस समय मिस्टर सी और मिस्टर डी वहां पर विटनेस थे. अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपया दिया ब्याज पे और मिस्टर सी और डी वहां पर मौजूद हैं और ये सब ओरल हो रहा है, और बाद में मिस्टर बी अगर मना कर देते हैं पैसे देने से और वो अगर मिस्टर ए को बोलते हैं कि नहीं, आपने मुझे कोई पैसे दिए ही नहीं, तो मिस्टर ए के पास क्या ऑप्शन है कि ही कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मिस्टर बी. बट मिस्टर ए हैज टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ एविडेंस दैट he has given 1 lakh rupees on interest to Mr. B. अब अगर मिस्टर सी और डी दोनों भी कोर्ट में ये बोलते हैं कि हमारे सामने नहीं दिए, then it will be called as discharge of contract by way of complete loss of evidence. तो एविडेंस क्या था मिस्टर ए के पास? उन्होंने रिटर्न में तो कुछ किया नहीं था. उनके पास एविडेंस था कि 2 लोग थे जिनके सामने ये पैसा दिया गया, जिनके सामने ये ऑफर दिया गया, जिनके सामने ये एक्सेप्टेंस. अब वो 2 लोग अगर मना कर देते हैं कोर्ट में और मिस्टर बी ने भी मना कर दिया, तो इट विल बी कॉल्ड एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ एविडेंस. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is covered under by breach. Breach is violation, breach is breaking. Breach is when one party doesn't perform its promise, right? So that is called as breach. By breach made by any party to the contract.
Now, first type is called as actual breach, and the second type is called as anticipatory breach. So, actual breach जैसे हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा कि दो टाइप के परफॉर्मेंस है. First is called as actual performance, where both the parties to the contract they perform their part of the contract in the contract. So that was actual performance. तो सेम उसका ही ऑपोजिट क्या है? एक्चुअल ब्रीच. सो एक्चुअल ब्रीच में क्या हुआ? एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या हुआ कि दोनों पार्टी ने जो जो प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे के साथ किया था वो पूरा हो गया, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया. एक्चुअल ब्रीच मतलब दोनों पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया वो या तो दोनों पार्टीज ने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया, या दोनों में से एक पार्टी ने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया. कब नहीं किया? जिस दिन एक्सपेक्टेड था करना उस दिन, राइट. अब 1 फरवरी को मिस्टर ए, 1 फरवरी को मिस्टर ए अपनी कार बेचना चाहते हैं मिस्टर बी को. 1 फरवरी को ही मिस्टर बी मिस्टर ए को कार के बदले में 50,000 रुपए कैश देने वाले. अब 1 फरवरी को अगर मिस्टर ए कार नहीं बेचते हैं, उस समय उस जगह पे कार नहीं लेकर आते हैं जहां पर एग्रीड थे, और मिस्टर बी भी वहां पर पैसा लेकर नहीं पहुंचते, तो क्या होगा? ये दिस विल बी कॉल्ड एज actual breach of contract, because in the contract it was clearly mentioned that on 1st of February Mr. A will come at a agreed place on a agreed time and he will deliver the car to Mr. B. In return, Mr. B has also promised that he will come with 50,000 cash and he will immediately hand over the cash on 1st of February to Mr. A on the delivery of car. So both the parties were not there to perform the contract on 1st of February. So this will be called as actual breach of contract. या एक पार्टी आई, एक पार्टी नहीं पहुंच पाई. एक पार्टी कार लेकर आ गई, मतलब ए कार लेकर आया पर बी पहुंचा वहां पर 50,000 लेकर नहीं पहुंचा. वो बोल रहा है कि मैं 5 दिन के बाद. हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर था कि उसी दिन मतलब 1st ऑफ फेब को ही 50,000 देने. तो दोनों पार्टी जब अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं करती या प्रॉमिस पूरा नहीं करते, या फिर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस पूरा नहीं करती, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. नाउ सेकंड वन is anticipatory breach of contract. Now anticipatory breach of contract is when one of the party to the contract refuses to perform its part in the contract before the actual date mentioned in the contract. That is called as anticipatory breach of contract. 1 फरवरी को मिस्टर ए कार बेचने वाले हैं मिस्टर बी को, और मिस्टर बी कार खरीदने वाले हैं मिस्टर ए से 1 फरवरी को, 1 फरवरी. अब 30 जनवरी को ही मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को बताते हैं कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मैं अपनी कार नहीं बेचना चाहता, या फिर मिस्टर बी मिस्टर ए को 1 फरवरी से पहले 31 जनवरी को अगर बताते हैं कि सॉरी मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो अब मैं कार नहीं खरीद सकता 1 तारीख को. सो दिस विल बी कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी ब्रीच. सो एंटीसिपेटरी ब्रीच मीन्स एक्चुअल ब्रीच इज ऑन द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एंटीसिपेटरी ब्रीच मीन्स बिफोर द डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इफ both the parties to the contract or any one party to the contract refuses to complete its promise mentioned in the contract, then we can say that it will be called as discharge of contract by way of anticipatory breach. Now anticipatory breach is again divided into 2 parts. One is called as by express by words spoken or written, implied by conduct of one of the parties. Now, anyone who can give me the meaning of what is
a express offer and what is a implied offer. जैसे हम लोगों ने वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे थे, at that time we had discussed that there when we were talking about types of contract, at that particular time we had discussed that there are certain contracts which are categorized under express contract, whereas some of the contracts are also called as implied contract. So here it is mentioned very clearly, express contract means any contract which is in oral form or written form is called as express contract, and any contract which is created by action or conduct of a party, that contract is called as implied contract. Anyone who can give me example of these two by giving me examples of anticipatory breach. So kab I want example for anticipatory breach under express by words and anticipatory breach of contract under implied by conduct of one of the parties. Yes. कैसे रहेगा? एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब समझिए आप. एक्चुअल ब्रीच मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में तारीख निश्चित हुई है कि इस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, उस दिन अगर वो परफॉर्म नहीं होता है तो एक्चुअल ब्रीच, राइट? एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब जो तारीख निश्चित हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, उससे पहले दोनों पार्टीज या दोनों में से एक पार्टी अपनी अगर वो रिफ्यूज करते हैं कि और बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन दे आर अनेबल टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो अब मुझे आप एग्जांपल दीजिए कि एंटीसिपेटरी ब्रीच एक्सप्रेस बाय वर्ड्स क्या हो सकता है, एंटीसिपेटरी ब्रीच इंप्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज क्या हो सकता है? यस, हु विल गिव मी एग्जांपल? बहुत सिंपल है. यस, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का हाँ बोलिए बोलिए. यस, वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? प्रतीक्षा. ओके, हाँ प्रतीक्षा बोलिए. A person enter a hotel and order to take a cup of tea or coffee. It's express or spoken contract. नहीं, it will be called as implied contract, right? Very good. So it will not be express, but it is implied contract because the person is entering a hotel and he occupies a table and he orders a cup of coffee, right? तो यहां पर ये एग्जांपल हुआ implied का. एक्सप्रेस बाय वर्ड्स का कैसे होगा? एक्सप्रेस बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन कैसे होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीसिपेटरी ब्रीच. तो जैसे मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है, बहुत सिंपल है. अब अगर ए बी को फोन करके 31 जनवरी को बताते हैं कि 1 तारीख को जो हमारे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है मैं वो नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्या हुआ? दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन. अगर फोन करने की जगह मिस्टर ए 30 जनवरी को मिस्टर बी को मेल करके बताते हैं कि सॉरी, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम अनेबल टू सेल माय कार टू यू ऑन 1st of February, so it will be covered under anticipatory breach in written form, right? Yes. Okay, now next one is by discharge of contract by assignment. अब असाइनमेंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया है जब हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे थे. असाइनमेंट इज when you are assigning your responsibilities to somebody else in the contract, right? Assignment मतलब okay. पल्लवी कुठे आहे? पल्लवी कुठं आहे पल्लवी? ओके. कौन? शिवांगी. Yes. Okay, so please. पल्लवी कुठे आहे? पल्लवी. Who is it?
Please mute your mic. Please mute your mic. The assignment means when you are assigning somebody your responsibility in the contract, right? So that is called as discharge of contract by way of assignment. अब असाइनमेंट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, सपोज अब मिस्टर ए और मिस्टर बी में कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपीस दिए लोन के लिए, लोन पे और इंटरेस्ट के साथ, 3 महीने का इंटरेस्ट 10%, राइट? अब किसकी जवाबदारी है ये लोन रिटर्न करने की? मिस्टर बी की, क्योंकि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है। अब असाइनमेंट के अंडर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता? अब मिस्टर बी मिस्टर ए को कांटेक्ट करते हैं 2.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, और मिस्टर ए को बताते हैं कि आपने जो मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं, मैं विथ इंटरेस्ट वो रिटर्न नहीं करूंगा, बट मेरा रिलेटिव है मिस्टर सी, वो ये सारा पैसा विथ इंटरेस्ट आपको रिटर्न करेगा, right? So this is called as discharge of contract by assignment. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर कि मिस्टर ए जो प्रोमिसी है यहां पर, नाउ प्रोमिसी इज द पर्सन हु इज क्या कर रहा है? वो प्रोमिसी यहां पर क्या कर रहा है? ही इज गिविंग लोन। प्रोमिसर क्या कर रहा है यहां पर? तो मिस्टर ए इज प्रोमिसी, मिस्टर बी वो प्रॉमिस कर रहा है कि आई विल रिटर्न द लोन, तो मिस्टर बी इज प्रोमिसी है। तो यहां पर क्या है कि जब तक मिस्टर ए एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ठीक है अब मेरे लिए प्रॉमिसर मिस्टर बी नहीं, अब मेरे लिए प्रॉमिसर कौन है? मिस्टर सी। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर सी को अपना प्रॉमिसर मान लिया है और दोनों में नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में था, दैट विल बी discharged by way of assignment, because the Mr. B has shifted his responsibility towards Mr. C, and it is accepted by Mr. C, and it is accepted by Mr. A also. Then it is discharged by way of assignment. Next is by impossibility of performance. The impossibility of performance also, when we were discussing performance of contract, we had discussed that what is the meaning of impossibility of performance. तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, जैसे कि अगर कोई ये कहता है कि अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को ये बोलते हैं कि आप मुझे 1 लाख रुपए अगर दोगे तो मैं 2 पैरेलल लाइन को जोड़ के दिखा सकता हूं। पैरेलल लाइन कहीं से मुड़नी नहीं चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई कहता है कि आप मुझे अगर 1 लाख रुपए दोगे, मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को कहते हैं यू पे मी ₹1 lakh and I will put life in a dead person and I can prove it to you also. So this is again impossibility of performance, discharge of contract by impossibility of performance. Now these type of contracts are called as ab initio contracts or ab initio agreements. Ab initio मतलब right from the beginning of the contract, right from the creation of the contract, right? फिर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंडर आते हैं, जो पहले पॉसिबल है बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मिस्टर ए एक कंट्री में रहते हैं, मिस्टर बी दूसरी कंट्री में रहते हैं, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो लोग अपना अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा कर रहे हैं। अब अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी की कंट्रीज के बीच में वॉर शुरू हो जाता है, लड़ाई लग जाती है,
तो क्या होगा, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जब दोनों कंट्रीज में हार्मोनियस रिलेशंस, दोनों कंट्रीज में व्यापार होता है, दोनों कंट्रीज में एक दूसरे के जो एग्रीमेंट्स हैं उनको ऑनर किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, तो तब तक इट इज लीगल, तब तक इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। पर जैसे ही इन दो कंट्रीज के बीच में अगर युद्ध शुरू हो गया, अगर वॉर शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, तो क्या होगा, उस समय से आगे ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर बाय मटेरियल अल्टरेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड पार्टी। नाउ अल्टरेशन मीनिंग हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, अल्टरेशन मतलब कि चेंजेस, राइट। अब मटेरियल अल्टरेशन मतलब जब जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो चेंज किए जाते हैं, और कैसे चेंज किए जाते हैं, विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड पार्टी। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को बताए बिना कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करती है, then that contract is said to be discharged by way of material alteration without the consent of the concerned party, right। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अगर 1 लाख रुपए दिए और रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 3 महीने के बाद मिस्टर बी पैसे वापस करेंगे और 10% इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। अब ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है वो मिस्टर ए के पास, क्योंकि मिस्टर ए ने लोन दिया है, राइट। अब मिस्टर ए को लालच आ गया और मिस्टर ए ने, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल कॉपी है, उन्होंने उसको चेंज कर दिया। 3 महीने को उन्होंने 2 महीना कर दिया, 10% को उन्होंने 20% कर दिया, बिना मिस्टर बी की जानकारी, मिस्टर बी को नहीं बताया। और अगर उन्होंने ये सब चेंजेस कर दिए और अगर मिस्टर बी can prove this in the court of law, then this contract stand discharged by way of material alteration without the consent of the concerned party, right? So these were some of the points under discharge of contract. So discharge of contract मतलब इन तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे वेज थे, बहुत सारे टाइप्स थे that we had discussed, around 15-20 types we had discussed. Now we will move forward with the remedies for breach of contract. Now breach, we all know what is breach. Breach is violation of contract or breaking of contract, ठीक है, that is called as breach of contract. Now remedies मतलब options available, उसके पास कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है उसके अगेंस्ट दूसरी पार्टी के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दैट वी विल बी नाउ डिस्कसिंग अंडर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज ओके, yes, we can cover this. So first remedy for breach of contract is rescission of contract. So the meaning of rescission, it is not recession, it is rescission. Rescission is also called as cancellation or rejection of contract. So remedies हम लोग क्या अभी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं किसके पास, उस पार्टी के पास जिसने अपना प्रॉमिस तो पूरा किया पर सामने वाली पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो कॉम्पेंसेशन अगर लेना है तो क्या अवेलेबल, फर्स्ट इज rescission of the contract, that is cancellation of the contract. अब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कार सेल से लेके, ठीक है, कार सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और rescission of contract या cancellation of contract कब कहलाएगा? Can anybody give me an example here? Cancellation of contract is rescission of contract.
तो बहुत सिंपल है, मिस्टर ए ने, वी विल कंटिन्यू विद सेम एग्जांपल कि 1 फरवरी को मिस्टर ए अपनी कार लेकर आएंगे विद डॉक्यूमेंट्स विद ऑल द पेपर्स, और मिस्टर बी एग्रीड टाइम पर एग्रीड प्लेस पर 50,000 रुपए कैश लेकर आएंगे और दोनों एक्सचेंज करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा, राइट। अब मिस्टर ए वहां पर आ जाते हैं अपनी कार लेके, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके, पर मिस्टर बी वहां पर 50,000 रुपए लेकर नहीं आते। तो क्या रेमेडी अवेलेबल है यहाँ पर? एक रेमेडी ये अवेलेबल है मिस्टर ए के पास कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आज आप 50,000 नहीं दे सकते तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, एज डिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नेक्स्ट इज सूट फॉर डैमेजेस। सूट मतलब केस फाइल करना, ठीक है। तो केस फाइल करना मतलब अगर किसी पार्टी को, कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज रहती हैं, एक पार्टी को दूसरी पार्टी की वजह से अगर नुकसान हुआ, अगर मॉनिटरी लॉस होता है और उनको मॉनिटरीली वो कवर करना है लॉस, कॉम्पनसेशन दूसरी पार्टी से लेना है, तो फिर वो क्या करेंगे? उनके पास एक अवेलेबल क्या है ऑप्शन कि दे कैन फाइल अ केस फॉर डैमेजेस, फॉर कॉम्पनसेशन अगेंस्ट द पार्टी विच हैज कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कोर्ट अपने जजमेंट के अंडर काफी सारे टाइप्स के डैमेजेस दे सकता है। डैमेजेस मींस कॉम्पनसेशन, राइट, मॉनिटरी कॉम्पनसेशन, राइट। सो वो कौन कौन से डैमेजेस हो सकते हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस, damages agreed upon in advance in case of breach of contract, and damages for loss of reputation. तो फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डैमेजेस। यहां पर हमारे को उसका मीनिंग देखना है, राइट। तो ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल डैमेजेस और बिल्कुल साधारण से डैमेजेस, ठीक है। ऑर्डिनरी मतलब साधारण डैमेजेस। अब साधारण डैमेजेस मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी ने अपना पार्ट पूरा नहीं किया, इस वजह से दूसरी पार्टी को लॉस हुआ, पर वो लॉस कैसा था? वो लॉस बहुत ज्यादा था नहीं था, पर लॉस हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ। तो जितना लॉस हुआ उतना लॉस की नुकसान भरपाई चाहिए या कॉम्पेंसेशन चाहिए। जिस पार्टी का लॉस हुआ है उस पार्टी को चाहिए, किससे चाहिए? जिस पार्टी की वजह से लॉस हुआ उससे चाहिए। तो यहां पर क्या कोर्ट फैसला करेगा कि क्योंकि जिस पार्टी ने केस फाइल किया है उस पार्टी को बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, इसीलिए उससे जितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और ये कॉम्पेंसेशन कहलाएगा ऑर्डिनरी डैमेजेस। नेक्स्ट इज स्पेशल डैमेजेस। अब स्पेशल डैमेजेस एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, स्पेशल मतलब स्पेशल। अब स्पेशल मतलब जैसे ऑर्डिनरी में हमने देखा कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था एक पार्टी का, स्पेशल में मतलब नुकसान जब बहुत अधिक मात्रा में है तब जो कॉम्पेंसेशन दिया जाता है वो कॉम्पेंसेशन कोर्ट के अंडर, कोर्ट में किस अंडर दिया जाता है, किसके अंडर दिया जाता है? दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल डैमेजेस अवॉर्डेड टू दी अग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी किसको बोलते हैं? जिस पार्टी का लॉस होता है उस पार्टी को बोला जाता है एग्रीव्ड पार्टी, राइट। और किसके अगेंस्ट दिया जाता है जजमेंट? जिस पार्टी ने ब्रीच किया है, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है, उस पार्टी के अगेंस्ट जजमेंट होता है, राइट। सो दैट इज स्पेशल। अब नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल मतलब ऑर्डिनरी से भी कम। ऑर्डिनरी में हमने बोला कि जब मॉनिटरी लॉस था एक पार्टी का वो कम हुआ, मतलब 1,000 रुपए हुआ या 2,000 रुपए हुआ, तो साधारण है। नॉमिनल मतलब उससे भी कम हुआ, जब 100 रुपए का लॉस हुआ, 200 रुपए का लॉस हुआ। पर सूट क्यों फाइल किया गया अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा? जस्ट टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट
the aggrieved party is correct and the opposite party of the contract has actually committed the breach in the contract. अब aggrieved party जिसको लॉस हुआ उसको बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ, पर वो क्यों कोर्ट में केस फाइल कर रही है पार्टी, वो इसलिए कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं ताकि ये प्रूव कर सकें कि वो सही है अपना पार्ट पूरा करके, पर मिस्टर जो दूसरी पार्टी थी उसने कोर्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया है। इसीलिए कोर्ट कोई बहुत बड़ी सजा या बहुत बड़ा जुर्माना नहीं लगाएगा उस पार्टी को जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, क्योंकि साधारण सा लॉस हुआ, नॉमिनल सा लॉस हुआ बहुत ही ज्यादा, इसीलिए नॉमिनल ही कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डैमेजेस इज कॉल्ड एज vindictive damages. Now vindictive damages are also called as exemplary damages. Now these damages are awarded by the court of law under only two conditions. First condition, when a bank dishonors a check without a valid reason, and second condition is when there is breach in contract of marriage. Ordinary damage, special damage, nominal damage में ऐसा फिक्स नहीं कि कितना होना चाहिए और कौन से टाइप का उसमें केस हम लोग फाइल कर सकते हैं, पर जब हम लोग विंडिक्टिव डैमेजेस के बारे में बताते हैं, बात करेंगे, तो विंडिक्टिव डैमेजेस में फिक्स है, कोर्ट सिर्फ दो कंडीशन में ही विंडिक्टिव डैमेजेस अवार्ड करता है। कौन सा? एक, जब आपने अपना चेक जो बैंक में डिपॉजिट किया है, बैंक ने बिना किसी वैलिड रीजन के, मतलब आपने नाम लिखा, आपने अमाउंट डाला है, आपने जिस पार्टी को देना है उस पार्टी का नाम डाला है, आपने वर्ड्स में लिखा है, आपने फिगर्स में लिखा है, आपने डेट डाली है, कोई ओवर राइटिंग नहीं हुआ है, तो जितना भी चीजें एक्सपेक्टेड है वो सब आपने की, पर फिर भी अगर बैंक आपका चेक बिना किसी वैलिड रीजन के डिसऑनर करते हैं, आपका चेक अगर बाउंस हो जाता है, तो आपको क्या मिलेगा? जो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा वो किसके अंडर मिलेगा? दैट विल बी विंडिक्टिव डैमेजेस। यही एक ऐसी डैमेजेस है जहां पर कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा या कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है, और जो दूसरी पार्टी है उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सजा भी हो सकती है। ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस और नॉमिनल डैमेजेस में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि मॉनिटरी लॉस के ऊपर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ऑर्डिनरी डैमेजेस देने हैं, कॉम्पेंसेशन देना है, स्पेशल कॉम्पेंसेशन देना है या नॉमिनल कॉम्पेंसेशन। पर जब विंडिक्टिव मतलब दो केस अगर के अगेंस्ट में अगर कोई ये होता है, केस फाइल होता है दो कंडीशन के अंडर। पहला कंडीशन, जब कोई व्यक्ति, एक पार्टी बैंक में जाती है, एक व्यक्ति बैंक में जाता है और वो अपना चेक डिपॉजिट करता है, बिना किसी वैलिड रीजन के वो चेक अगर रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर कोर्ट उस बैंक का जो कैशियर रहेगा या जो भी कंसर्न व्यक्ति है जिसकी वजह से वो डिसऑनर हुआ है चेक, जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उसको दो चीजें हो सकती हैं, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा और दूसरा उसे कोर्ट सजा भी सुना सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी उसे हो सकती है। तो दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन व्हेन valid check is dishonored by the bank, and the second condition is when there is breach of contract of marriage, right? Now only 2 minutes, I'll not take much of your time, we will just wind up these two remaining two also. They are again very simple. Fifth one is damages agreed upon in advance in the case of breach of contract. अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डैमेजेस हैं, ऐसा कॉम्पेंसेशन जो
जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया वहां पर ही इंक्लूड किया गया टर्म कि अगर दोनों में से एक पार्टी ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट को तो कितना दूसरी पार्टी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अभी तक हमने जो देखा है वो क्या है कि पहले ब्रीच हुआ, उसके बाद कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने वो डैमेजेस प्रोनाउंस किए, अवार्ड दिया, ऑर्डर किया, राइट। अब 5th पॉइंट में क्या लिखा है कि डैमेजेस एग्रीड अपॉन इन एडवांस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में बन रहा था तब ही दोनों पार्टियों ने मंजूरी दी कि अगर हम दोनों में से कोई भी ब्रीच करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक करता है, तो उसे कितना कॉम्पेंसेशन दूसरे को देना पड़ेगा। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 10,000 रुपए, दोनों भी पार्टी ने जितना एग्री किया है ब्रीच पर उतना देना चाहिए। So that is called as damages agreed upon in advance in case of breach of contract. Last one, damage for loss of reputation. Loss of reputation बहुत सिंपल है, सबको पता है। जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं या फिर सीरियल्स में देखते हैं, बोलते हैं ना कि आपकी वजह से मेरी मान हानि हुई है, मैं आप पर मान हानि का दावा कर दूंगा। तो दैट मान हानि का दावा मीन्स लॉस ऑफ रेपुटेशन। नाउ हियर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ascertain the amount in such cases। ठीक है, जैसे बाकी सब डैमेजेस में अमाउंट कोर्ट द्वारा बहुत इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है कि एक पार्टी ने ब्रीच किया तो दूसरी पार्टी को मॉनेटरी कितना लॉस हुआ। अब ये जो 6th पॉइंट है, डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन, मान हानि मतलब मेरी सोसाइटी में इज्जत गई या इज्जत कम हुई, तो इसको जब हम कॉम्पेंसेशन में ये करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ascertain, सो इट इज टू बी फाइनलाइज्ड बाय द कोर्ट ओनली। जैसे हम लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कि किसी पॉलिटिशियन ने, किसी चैनल ने किसी पॉलिटिशियन के ऊपर अगर कुछ न्यूज दिखाया और पॉलिटिशियन अगर बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो झूठा न्यूज हुआ, इसकी वजह से आई हैव लॉस्ट माय रेपुटेशन, तो 1 करोड़ का मैं मानहानि का दावा करूंगा या 10 करोड़ का कॉम्पेंसेशन मैं चैनल से मांगूंगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट इमीडिएटली चैनल को बोलेगा कि ठीक है आप प्रूव नहीं कर सके तो 10 लाख दे दो या 10 करोड़ दे दो या 50 करोड़। इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट एंड इट इज बिट डिफिकल्ट टू बी डिसाइडेड, क्योंकि उस चीज को तय करना कि उस व्यक्ति की, उस पार्टी की सोसाइटी में कितनी इज्जत थी, उसका कितना लॉस हुआ, और उस लॉस को अगर हम लोग मॉनिटरी टर्म्स में अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा। सो एवरीथिंग इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। कोई व्यक्ति 100 करोड़ का भी मानहानि का दावा पेश कर सकता है, कोर्ट में दाखिल कर सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो जीत गया तो कोर्ट उसको 100 करोड़ रुपए का ही कॉम्पेंसेशन दूसरी पार्टी से दिलवाए। It is to be decided by the court. It can be 100 crore, it can be 1 crore also. Okay, so we will end here. In case of any query, please write it on a piece of paper and we can take up that query when we will be meeting tomorrow at 7 p.m. again, right? So as we have already taken 5 minutes from the next lecture, so we will stop here. In case of any query, we will take up the query tomorrow at 7 p.m. and then we will proceed with the lecture, right? Okay, So, sir. thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir. Sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.